नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। गाइज, आज की जो वीडियो है, इन दैट वीडियो आई टुक ए पोस्चर, द कैमल पोस्चर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन द एक्सपेक्ट कि एक बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पर आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। All the movements and all the basic terms about the alignment, some fundamental things I also try to be explained. You are a beginner, intermediate, advanced level, you are a yoga teacher, you are professional, everyone, आप सभी को इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मेन थिंग कि आप सेफ तरीके से, एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए so that you can have the result. So step by step practice and you will like this video, and if you really like it, so please like, share and subscribe with your friends and family friends. So thank you so much. Namaste. Enjoy the class. Okay guys, so here I will be explaining to you about the camel posture. So in camel posture we will be also understand all the aspect of back bending. हम बैक बेंडिंग जो एस्पेक्ट है आपकी अपर बैक बेंडिंग, मिडिल एंड योर लोअर बैक बेंडिंग, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हाउ यू हैव टू बी वर्क ऑन दैट। अनदर थिंग, सम मेजर एंड कोर प्रिंसिपल बिलोंग टू द बैक बेंडिंग, लाइक दैट इज योर नेक पोजिशन, योर शोल्डर पोजिशन, योर पेल्विक पोजिशन, then your rib cage, your thoracic opening, your core connection and your breathing technique, work on the spine. So you will be learn all this thing in one portion, and later then we also explain ki what are the different levels we can be modify. हम अलग अलग modify पोस्चर में कैसे कर सकते हैं ताकि आप पर्टिकुलर लेवल को भी आप इजीली आप एक्सप्लेन कर पाए। So camel pose, one of the back bending posture. Camel means ऊंट in Hindi we call. So firstly you have to be stand on your knee. Understand the distance in between knee. ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है समझने के लिए। Usually when we are teaching the camel pose, the distance should be in between knee and then feet as per your hip. Or even if you practice with the knee and feet closer, you do the practice, is not a wrong thing. Only the impact or effect of this particular pose will be changed. When you practice the knee and feet closer, जब आप knee और feet को मिलाकर करोगे तो पोस्चर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। So at a beginning will be practice with a distance, हम एक डिस्टेंस के साथ में हम करेंगे। Another thing, the position of your feet, आपके feet की पोजीशन क्या होनी चाहिए? It should be flattened or it should be curl the toes. वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। तो both are right, दोनों ही ठीक है। Initial level, if someone is a beginner, अगर कोई beginner है, they are doing the practice one time, या फिर they do not have that much kind of the stability, वो stability नहीं है आपके muscles के अंदर, so we recommend that you can be curl the toes, because curl the toes will give you the more stability. वो थोड़ा सा आपको और stability और strength आपको वो provide करता है। This is okay, this is okay, so you can be fine and you can be choose your own level. इसके बाद will be cover the back bending. Firstly I'll be cover like your lower back bending aspect. एक बेसिक तरीके से समझेंगे। Put your hands on your back guys, दोनों हाथ आप अपने बैक पर रखिए इस तरीके से। So let's you work step by step. Number one, open the shoulder. शोल्डर को ऐसे ओपनिंग दीजिए। When you give the opening in your shoulder, so it will give the opening in your upper back as well. Number two step, you have to drop your shoulder down. Why? When you drop the shoulder down, you can give the space to your neck. आपकी स्पेस, आपकी नेक को स्पेस मिलेगा, and when you drop the head, it will be easier for you. So drop, open the shoulder, drop your shoulder. Now the pelvic movement we call the frontal. hip को सामने की तरफ पुश कीजिए। When you come in the frontal, you will feel that your butt gets squeezed. ये आप देख लीजिएगा। This one. Now come on the breath. breath के साथ हम कोरिलेट करेंगे अपनी स्पाइन को। Inhale. Inhale के साथ you have to be lengthen the spine, with the spine position. स्पाइन को लेंथन कीजिए। सेम, ड्रॉप द शोल्डर, एल्बो क्लोजर एंड एक्सेल। एक्सेल के साथ यू हैव टू पुश योर हिप फ्रंट एंड ड्रॉप द हेड। नाउ शोल्डर अवे, व्हेन यू ड्रॉप द हेड इट शुडंट बी श्रिंक, ऐसे नहीं ड्रॉप करना उसको। जस्ट लेंथन द नेक एंड देन जस्ट बी ड्रॉप। मेंटेन दिस पोजीशन। नाउ द पोजीशन अबाउट योर हिप एंड नी, इट शुडंट बी दिस wrong and it shouldn't be lean too much. मतलब आपका हिप और नी जो है that should be aligned here, वो आपका अलाइन होना चाहिए। एंड यू सी
वी फॉलो ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ द बैक बेंडिंग इन दिस पोस्चर। अब इसके बाद आप कोई भी एक्सपेक्ट लेंगे बैक बेंडिंग का, वी डिड लोअर, थोड़े से हाथ आप ऊपर लेकर चलेंगे, व्हेन यू टेक हैंड्स a bit up in between your thoracic and the lumbar, it will be cover your middle spine. Same thing, open shoulder, drop your shoulder, front tilt, inhale, lengthen spine, exhale, then bend back. Shoulder away, elbow closer, neck, lengthen it, tuck the chin. Hold 1, 2, 3, 4. Inhale, come back, exhale, relax. Same principle. I'm just changing the aspect, guys. इसके बाद नंबर 3, I will be cover my upper back. अब upper back पर hands will be more up, maximum up side. इसको आप हाथ बेशक ऐसे रखिए, और even one another form you can even make the namaste in between shoulder blade. Why? Because जब आपके हाथ upper spine को cover करेंगे, so it will give the maximum opening to your upper spine. Other things will remain same. बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी आपकी. Open shoulder, drop shoulder, hip push front side. Now breath, inhale and exhale. Bend back. Breath 1, 2, 3, 4. Inhale, come back and exhale, relax. We did work on middle, your lower and upper back bending. हमने तीनों एक्सपेक्ट पर काम किया, बट जो भी हमने एक्सपेक्ट चूज किया, वी फॉलो द सेम प्रिंसिपल को हमने बार बार हमने रिपीट किया. अदर थिंग अबाउट द होल्डिंग ऑफ एनी पोस्चर दैट कैन बी आल्सो डिपेंड ऑन यू गाइस. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज इफ यू आर होल्डिंग द पोज, एवरीवन कैन बी हैव देयर ओन स्ट्रेंथ लेवल एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी लेवल. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी योगा पोस्चर, यू नीड टू बी कंबाइन द बैलेंस इन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कई स्टूडेंट में होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है बट नो स्ट्रेंथ. तो क्या होगा, when you have so much flexibility but you do not have the strength, and when you are trying to hold that particular pose, you are not able. आप उसको movement तो आप कर पाओगे, back bending, come back, front forward bending, back bending, but when I say you hold, that time if you do not have that strength, so your breath will be start distracting. आपका breath वहां पर distract करेगा, and it can be lead to any injury as well. तो यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ में आपको वो एक जो बैलेंस है, दैट यू हैव टू बी मेंटेन. वो कैसे करेंगे आप? दैट थिंग यू हैव टू बी इम्प्लीमेंट एंड हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय योरसेल्फ. अदर थिंग विल बी रिमेन सेम. एक्सपेक्ट कैन बी एनीथिंग, लोअर, मिडल एंड अपर, कोई भी एक्सपेक्ट हो सकता है. एग्जाम्पल, इफ योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल हियर, आप यहां तक जा सकते हैं, बट व्हेन यू ब्रेथ, you are distracting your breath, you are not feeling comfortable, so better you little bit come up, and here you feel breath, yes, I can be breath easily in and out. So like that you have to be combine the balance. तो आप उस लेवल पर लेकर जाइए अपने आप को जहां पर आप अपनी ब्रेथ को इन एंड आउट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन तरीके से कर पाए. जैसे ही आपने अपना लेवल क्रॉस किया, फ्लेक्सिबिलिटी इज ओके, बट व्हेन यू क्रॉस द लेवल एंड होल्डिंग एंड योर ब्रेथ, so what will happen? Your breath will distract. जब आपका breath distract होगा, your breath will be getting faster. Breath आपका faster होगा, it means your body start shaking and vibrating. Then what will happen? Your muscle get tense. Muscle get tense हो गए, it will impact your blood circulation. And if it not in a blood circulation, what will happen? It may the reason can be have the dizziness, especially in the back bending. The symptoms can be fainting or sometimes even वो चक्कर का आना and then even fall down. Because I experience a lot with my class, and that कई बार students होते हैं, they are just forcing and they are holding the breath. क्या होता है कि कई बार हम push बहुत करते हैं, and sometimes जब your strength level is increasing, your breath start distracting. जब breath distract होते हैं, sometimes students start holding the breath. वो श्वास को रोक लेते हैं, and that is the biggest mistake when you're doing any portion. Start holding the breath. Breath can be deeper, breath can be longer, but please do not hold the breath. श्वास को रोकिए मत. There is just certain asana in the yoga in which you have to hold the breath, जैसे कि मंडूक आसना है. इस तरह कोई एक दो आसन होगा जिसके अंदर आपको breath hold करते हैं, but normally each and every posture you shouldn't require to hold the breath. Yes, deeper and longer, वो एक pattern हो सकता है हर किसी का अपना अपना. If I do the posture, maybe my breath is longer. Someone they do, maybe their breath is shorter.
तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वी विल बी कंबाइन द बैलेंस इन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ एंड हाउ विल बी मेजराइज. आपको पता कैसे चलेगा, कैसे चलेगा पता आपको? when you will be observe your breath guys. आप ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, जब भी आप कोई भी योगासना का पोस्चर करें, कोई भी योगासन कीजिए, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इट डजंट मैटर. अगर आप उस पोस्चर के अंदर यू फील कंफर्टेबल विद योर ब्रेथ, इट मींस यू आर डूइंग ऑन द राइट वे. जहां पर भी आपकी ब्रेथ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपकी ब्रेथ गड़बड़ हो रही है, ब्रेथ बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है आपका, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग. वहां पर आप यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट. You have to force but within your limit. That what yoga says. अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगी आपकी ब्रेथ को, so how you'll be connect with yourself? आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? And yoga is all about the connection that you learn. Okay? So we have to focus no pain yoga. तो ये तो हुआ आपका कि how to bring the connection with the breath. How to engage the core muscle. What I said, you have to engage the core muscle, so that core muscle, if you engage the core muscle, it will give the strength to your core and it will give the stability to your spine. आपकी spine को stabilize देगा, आपकी spine को strength देगा. Any posture of the back bending. This is important thing. अब इसके बाद फिर आते हैं modification. हम इसको modify कैसे करेंगे? एक तरीका तो हो गया ये, आपने लोअर पर काम किया, मिडिल पर काम किया, अपर पर काम किया. Now what are the different modifications? Modifications, when you are able to hold this, आप इसको modify करेंगे. Example, ये सब हमने किया, then you can be modified. Like simply hold your left ankle, same flatten feet, or curl the toe. Easier, little challenging. Shoulder, align, align, align. 3 बार करके बताया मैंने आपको. Align मतलब when you align then shoulder, then all your spine will be worked exactly straight, and then drop the right hand. This one, it shouldn't be like this. So shoulder align, जब आपके shoulder align होंगे, then your spine will be work exactly straight. Head, wrong, right, like this. Initial level you feel difficult, नहीं कर पा रहे, leave it, curl the toes and then try. Still difficult. Where is my block? Sorry. Then you can use the block for that. Or maybe even some students are struggling in the beginning. You are here, it's okay for a time being, but धीरे धीरे आपको अपनी प्रैक्टिस वहां पर लेकर जाना. आई एम नॉट सेइंग कि इन ए वन टाइम एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, एक बारी में सारी चीजें हो पाएंगी, बट धीरे 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 अवेयरनेस होना चाहिए कि यस आई हैव टू बी अचीव दिस, सो दैट योर डायरेक्शन विल टुवर्ड्स that particular technique and particular alignment. वो होना चाहिए, नहीं कि बस ये हो गया मेरा खत्म हो गया. नो, आपको उस लेवल तक जाने की प्रैक्टिस आपको धीरे 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 आपको करते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमने फिर इस पोस्चर को मॉडिफाई किया वन हैंड के साथ में. फिर हमने पोस्चर को मॉडिफाई किया, होल्ड द एंकल्स टुगेदर. सेम थिंग गाइस, सेम थिंग आपको फॉलो करना है यहाँ पर. हिप, शोल्डर, नेक, रोम, राइट, फ्लैटन फीट, curl the toes, easier, more easy, use the block. Other thing will be remain same, बाकी चीजें सेम रहेंगी. अब फिर इससे आगे हम कैसे चलेंगे? How we modify more? Now some another way कि हम इसको intense level पर और कैसे लेकर जाएंगे. Same thing. Last time we hold the ankle, this time hand on the back, right hand up. Inhale, same thing. Hip, shoulder, exhale, bend back. Hand on the lower, मिडल, अपर, डिपेंड्स. एस्पेक्ट को आप चेंज कर सकते हो. सो जब आप हाथ अपने बैक पर रखोगे द लेवल ऑफ द पोज इंक्रीज. हमने मॉडिफाई किया. बिगिनर को आप कैसे करवाओगे? बोथ हैंड्स. व्हेन यू टेक द लेवल अप, वन हैंड, एंड इसके बाद का लेवल बोथ हैंड्स अप एंड देन बैंड बैक. वो हो गया ऑन दैट लेवल. इसके बाद हाउ विल यू मॉडिफाई मोर? हैंड्स कैन बी अंडर द फीट, fingertip, arch the fingertip, push the palm. What is happening? Intensity is increasing more and more and more. जैसे जैसे हम पोस्चर को मॉडिफाई करेंगे, so intense level will increase. Intensity का मतलब, how will we measure the intensity? Intensity we can measure with the level of the strength and level of flexibility. आसन के अंदर flexibility not only enough, we also require that strength.
जब आप मूवमेंट करते हो, यस यू रिक्वायर मच फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मूवमेंट, बट व्हेन यू होल्ड दैट मूवमेंट दैट बिकम द पोज मींस स्थिरम सुखमासनम, वी रिक्वायर द स्टेबिलिटी, वी रिक्वायर द स्थिरता। और स्थिरता कैसे आएगी? जब आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी। अंडरस्टैंड? ये समझ में है आपको? अब इसी तरीके से आप जितनी भी प्रैक्टिस हमने अभी तक करी, व्हाट आर द प्रैक्टिस वी डिड अंटिल नाउ, तो उन सारी प्रैक्टिस को आप एक और लेवल तक भी लेकर जा सकते हो। हाउ? वो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, आई विल रिपीट अगेन व्हाट आई सेड, विद द डिस्टेंस एंड नाउ विदाउट डिस्टेंस। आप नी और फीट को मिलाकर कीजिएगा, नहीं कर पाए तो आप यू टेक द ब्लॉक इन बिटवीन योर थाई एंड देन रिपीट ऑल द प्रैक्टिस वंस अगेन, ऑल प्रैक्टिस वंस अगेन। Hands on the back, hands on middle back, upper back, hold on one ankle, then hand on the back, hold both ankles together, and you will observe. Same practice you will repeat again with the legs together, intensity level will increase. ये जो concept है, that concept is going more deeper side that what I mentioned in the beginning, your bottom back bending, जो आपके hyper level पर थोड़ा सा चला जाएगा। तो एक ही प्रैक्टिस को आप कैसे अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो। सो दिस इज द वेरी गुड वे, स्पेशली ये जो वट एवर आई एक्सप्लेन ड्यूरिंग इन दिस सेशन, सो दिस इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी योगा टीचर, बिकॉज प्रैक्टिशनर दे डजंट नो कि टेक्निकल चीजें कई बार नहीं पता होती है, जस्ट वो लगी हुई है, रेस लगी हुई है, बस गलत फलत करे जा रहे हैं। सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज फॉर एनी योगा टीचर दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट। और वो एजुकेशन कहाँ से आएगी? टीचर के थ्रू आएगी, दिस टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप इन सारी टेक्निक को ध्यान से सीखो और ध्यान से उनको इम्प्लीमेंट करो। एंड अनदर थिंग, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस नॉट फॉर एवरीवन। ये नहीं कि आपने ये देख लिया, कर लिया एंड यू स्टार्ट गिविंग एवरीथिंग टू एवरीवन। नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, डिसाइड कि यस दिस स्टूडेंट नीड दिस, उसको उतना ही दो आप, दिस स्टूडेंट रिक्वायर्ड दिस, उसको उतना ही दो आप। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एवरी प्रैक्टिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, सारी प्रैक्टिस हर किसी के लिए नहीं होती है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। एंड अगेन आई विल रिपीट अगेन, लेवल विल बी मेजराइज्ड विद द लेवल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ लेवल को भी हम कैसे मेजराइज करेंगे? द लेवल ऑफ द कंफर्टेबल लेवल। ठीक है, कंफर्टेबल आप कैसे फील करते हो? कई बार होता है कि सब स्टूडेंट्स से कि आई एम डूइंग द योगा, 1 महीना हो गया, 2 मंथ 2 महीने हो गए, आई एम नॉट इम्प्रूविंग, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही है, ये दिस एंड दैट, कंप्लेंट रोते रहते हैं, नहीं हो रहा है मुझसे। सो एवरीथिंग यू डू नॉट मेजराइज ओनली विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। आप सिर्फ सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ से भी कोरिलेट मत कीजिए। यू जस्ट आल्सो ऑब्जर्व एंड यू आस्क योर स्टूडेंट, जब आपने डे 1 किया और अभी आप 1 महीने के बाद करो सेम चीज, हाउ यू फील फ्रॉम द डे 1 एंड हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर 1 मंथ। जब आपने डे 1 में ये प्रैक्टिस की, हाउ यू फील, एंड जब डे 1 महीने बाद आपने ये प्रैक्टिस की, हाउ यू फील। इवन यूर लेवल इज द सेम। आई एम 100% श्योर, अगर उनका लेवल सेम रहा, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल सेम रहा, बट देयर कंफर्टेबल लेवल विल इंक्रीज। जब उन्होंने डे 1 किया, दे फील नो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेथ का हो गया, या होल्डिंग ड्यूरेशन हो गया, बट नाउ दे आर डूइंग आफ्टर 1 मंथ, यू कैन फील इवन देयर लेवल द सेम उसी पर जा रहे हैं, लेकिन दे फील मोर कंफर्टेबल। उनको इजीली वो वहां पर वो स्टैंड कर पा रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं। सो दिस इज आल्सो इंप्रूवमेंट, ये भी एक इंप्रूवमेंट है। सो दिस इज डिपेंड ऑन द टीचर, लाइक हाउ यू विल बी एजुकेट टू योर स्टूडेंट, because nowadays this is a very crazy things are going on, ki something we want to do something very much advanced and something crazy stuff and that. It's okay, that is okay, but depends on your body type, guys. Okay, I hope you will understand. Thank you. Now your time to practice each and everything whatever I explained in this video. Come on, do the practice.